but it is not just a job. It requires particular kind of brave heart. एक जज्बा चाहिए उसके लिए. So when you said a Kshatriya, when he's in battle, and he dies in battle, he automatically gets liberated. So does that also apply to a common man who dies because of this warfare? No. लेकिन उसकी क्या गलती थी जब वो उस वॉरफेयर में उसका तो उसी का गलती है पूरा. उसी का उसके लिए तो लड़ रहा है ना बेचारा वो उधर. जो पहलगाम में क्या गलती था? I am innocent. I didn't do anything or I don't know anything. उसने मुझे मार दिया, मैं मर गया. अब समझो एक न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा हमारे ऊपर, बॉम्ब गिर गया. आप मर गए तो आप कहना चाहते कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी क्या? अगर इतना आसान होता तो फिर आज तक जितने भी लोग मर गए सब स्वर्ग में जाते हैं. इसीलिए देखिए सब चीजों का सारांश क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस. किस भावना से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं. You take your daily life example, daily routine. You are feeding your children. What is the consciousness behind that? That they grow well, Yes. that they get the benefit of this Isn't? food and everything. You are not thinking about yourself. You are thinking about them. That actually nourishes them. Not the food is nourishing them. Food is just one item, but what is the actual nourishing item in that? Your love. Similarly, you are a citizen of India. You think that एक बॉम्ब आ गया मैं मर गया अभी. ऐसा नहीं होगा, होना नहीं चाहिए. ऐसी रात को नींद नहीं आती. You think that if the soldiers, जैसे हमारे इंडियन soldiers हैं, they are fighting to protect their country, their motherland. I mean, इंडिया ने कभी उनको पहले अटैक किया ही नहीं है, अभी भी नहीं कर रहे हैं देखा जाए. We are just protecting ourselves. तो अगर वो उन terrorists को मार रहे हैं तो that they are doing something good for their country, right? yes. They are talking about them. That they will attain. Yeah. They will attain. See, the point is they are doing for someone. That is the point. And जो terrorists हैं वो तो religion देख पूछ के मारा है लोगों को, तो वो तो गलत किया है ना उन लोगों ने. Obviously गलत किया. They think they will get 72 Paris ऊपर. उधर ट्रैफिक जाम हो गया. Because अभी और ट्रैफिक जाम हो गया. उन्हें क्या-क्या सिखाया जाता है बचपन से, उन्हें कितनी बकवास सिखाई जाती है. See, that Hore concept is what? It is similar to what you go to heaven and enjoy apsaras. But you are not taught कि आप जो मुस्लिम हिंदू नहीं है वो खराब है. That Hore means what? Some enticement. काजर दिखाना. वो तो हर जगह दिखाया जाता है, हर रिलीजन में दिखाया जाता है. Even if you go to Christianity, Islam or Hinduism, वो कहते हैं कि आपको स्वर्ग में जाएंगे तो अप्सराएं मिलेंगे. Definitely there are apsaras. But the point is, मार के नहीं. Even if you want to get some enjoyment, you get it through your karma. Pious ways, not impious ways. You know? Not by killing people Yeah, who don't belong definitely. to your religion. Yes. So they are taught that. Yeah, that's the problem. ना तो concoction करते हैं उसको. Religion को कुछ भी अपने भाषा में ट्रांसलेट करके कुछ भी बोलते हैं. अभी आप गणेश पंडाल में जब पिक्चर के गाने लगाते हैं, what is that? Concoction है वो. Do you think you will go to heaven? गणेश जी will allow you, बेटा आजा. वो गणेश पंडाल में बैठ के दारू पियोगे, पत्ता खिलोगे. तो शास्त्रों को एज इट इज फॉलो करना चाहिए. इवन कर्मकांडी शास्त्र भी उसके अपने नियम होते हैं, राइट? सो यस, यू विल नॉट गो टू हेवन बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर कॉन्शियसनेस. But if you say the Lord's name at the time of your death, then you may go to heaven. That is devotee, ना? That is devotee. That is far beyond even this कर्म कांडा and rituals. ये स्वर्ग से परे हो तो भगवान का नाम लेना. But they say कि end में बहुत कम लोगों के मुंह से. तो कब आएगा नाम? जब डेली चैंटिंग करोगे तब आएगा. तो बोल है. इसलिए मैं कहता हूँ ना, डेली चैंटिंग करो, डेली चैंटिंग करो. वो कभी कितनी बार सुना है आपने? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? लेकिन हम लोग कैसे हैं? इतने हम लोग मतलब गाली नहीं देना चाहता हूँ.
मैं दे देता हूँ। We want to take name of God at the end of life and go back to Godhead. बट पूरे लाइफ टाइम में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ फ्री में चाहिए, फ्री का राशन है ना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है ना इंडिया में, हरे कृष्णा, हुई और इनमें भी वो लोगों को कहते हैं कि अरे जरूरत नहीं, कुछ टैक्स का जरूरत नहीं है, कुछ पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, बस हमसे फ्री में आप ले लो और आप हमको वोट देते रहो। तो अभी देखो इतना सारा टेक्नोलॉजी खरीदा था इंडिया ने, कहाँ से खरीदा? इट इज थ्रू योर टैक्स। नहीं खरीदा होता तो क्या होता आज? So similarly for everything you have to pay a price. If you want a better, destination, bright future, you have to pay the price. Right now also you have to pay the price if you want to go to heaven. If you want to go to back to God, forget about heaven तो इधर ही का है। स्वर्ग में जाना तो कितना डिवाइन कॉन्शियसनेस चाहिए। So क्या है कि लोग जो ordinary people, those who are living in the country, what they are thinking? कितने लोग सोच रहे हैं कि धर्म की लड़ाई हो रही है? पता है? आज सब सोच रहे हैं। सोच रहे हैं because the leader is like that. Everything makes a difference, as per the who is leading you. Because I was at the club yesterday and a Yeah. lot of people, they were all discussing this कि Yes. this is dharma जैसा। Yeah, We are because- fighting for our rights। Yeah, because the leader is like that. If the leader is something different, then they will think क्यों लड़ रहे हैं, ताकि हम अपना जगह बना के यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह से enjoyment कर सकें। Then again material consciousness, not divine consciousness. Sorry? Yeah, not earlier, but throughout the world people are like that. How many people think that this is the fight for dharma? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इतना सब युद्ध लड़ने के बाद ये जो हम बोल रहे हैं हम लोग भी वही बोल रहे हैं ना कौन? मुस्लिम। But what I am saying, what you say has to be backed up by Shastra. नहीं, उन्हें तो हमारी कंट्री के टुकड़े करने हैं। We are very clear about that। जो भी आप बोल रहे हैं ना, इवन को देने से, इसलिए देखो रिलीजन कुछ भी कहो आप, इज इट अ बोना फाइड रिलीजन? इज इट कमिंग फ्रॉम परंपरा? प्रमाण तो हमें, नहीं है। वो क्या हाँ अभी राम सेतु का प्रमाण है कि नहीं? अभी भी मीन्स व्हाट? रामायण इज द, रामायण इज देयर। या इज देयर, एंड रामायण इज बेस्ड ऑन व्हाट? भगवान राम, राइट? जब राम सेतु था, रामायण है, तो राम भी है, राम कौन है? भगवान है। भगवान है मतलब जब इफ यू गो टू द रूट एंड फाइंड आउट, उन्होंने कभी अल्लाह को देखा है क्या? We don't have any So we don't want to demean. नहीं, राम से तो दिखाई देता है एक Yeah, द्वारका के भी अभी ये अवशेष है। Everything is there. See, मेरे कहने का मतलब ये है कि any religion or whatever you say spiritual, it has to be based on शास्त्र, scriptures. And scripture कौन से होने चाहिए? जो प्रॉपर परंपरा में आए हैं। आपका परंपरा बताओ ना, आपका परंपरा अभी 2000 साल पुराना है, हमारा कब का है? सेंचुरी। Date backs to you can't even find out. 2 लाख साल। Okay? That's what. इसीलिए All they do is conquer। yeah, so you can't go to Swarga if you don't have divine consciousness, right? So now, yeah, this is the intersection, and that's why we need to do our regular sadhana. Regular chanting करने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि आप आपके चेतना को अच्छा बनाओ। अगर सुबह सुबह आप चैंटिंग करके ऑफिस जाओगे तो दिन भर क्या सोचोगे? वाओ, दिस ऑफिस इज owned by Krishna. This life, this family, this entire everything is owned by Krishna, and I have to live life as per what he says. इसलिए चैंटिंग इज वेरी इसेंशियल। सुबह सुबह चैंटिंग करके जाना है, क्योंकि आपका दिन भर कॉन्शियसनेस डिवाइन रहेगा। और चैंटिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? दिन भर मंडेन रहेगा कॉन्शियसनेस। देन यू ऑलवेज गेट डिस्टर्ब्ड, ये मेरा है, ये उसका है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है, कृष्ण की इच्छा से आज बिजनेस कम हो गया, कोई बात नहीं, कल कृष्ण की इच्छा से आगे भी बढ़ेगा। नहीं बढ़ा या बढ़ा, स्टिल आई कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So it is like that. So this is the art of work in the verse number 50, right? Otherwise, ये शंकराचार्य का कोटेशन है। शंकराचार्य says, काम क्रोध लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कर, ज्ञान रत्न अपहराय तस्मात् जागृत जागृत, right? तो कहते हैं तस्कर means thieves. इस मनुष्य जीवन में 3 तस्कर हैं। कौन है? काम क्रोध लोभ। ये 3 चोर क्या करते हैं? हमारी मनुष्य जीवन की जो संपत्ति उसको चोरी करते हैं। And what is your संपत्ति? Our consciousness, right? So it is like that. So Krishna is saying, don't be like misers,
fight for the right cause, and you know, ये पाप और पुण्य इन दोनों से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ. Because पुण्य also binds you, पाप also binds you. इसका एक क्लासिक एग्जांपल श्रीमद् भागवत में है. आपने अगर भागवत में कभी कथा में सुना होगा तो वृंदावन में, नॉट वृंदावन, मथुरा में इन्हें एक एपिसोड है. एक बार कृष्ण बलराम, जोई माता जी, हरे कृष्ण. कृष्ण बलराम एक बार अपने ग्वाल वाल के साथ गाय चराने गए थे. तो बच्चे जो साथ में गए थे घूमने के लिए, उनको भूख लग गई. तो एक्चुअली शास्त्र में कहा गया कि उनको भूख नहीं लगा था. दे वांटेड टू फीड कृष्णा, बट इफ दे से यू नो कि कृष्णा आपके लिए कुछ लेके आते हैं, तो कृष्ण बोलेगा ना जरूरत नहीं. बट इफ दे से कि हम हंग्री है, वी वांट फूड, तो कृष्णा विल अरेंज समथिंग, राइट? कृष्णा विल नॉट डू फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज डिवोटीज ही विल डू. तो कहते हैं कि ठीक है, एक जगह पे वहाँ पे कुछ एक है ना नजदीक में यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे यज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान चल रहे हैं वहाँ पे, वेदों से यज्ञ करवा जा रहा है. आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे बहुत सारा भोगा लगाया हुआ है, यू नो, लॉट ऑफ फूड इज गोइंग टू बी ऑफर्ड इन यज्ञ. यू गो एंड आस्क फॉर दैट फूड. जाके बताओ कि कृष्ण बलराम आए हैं इस आपके यू नो एरिया में एंड दे वांट सम फूड, प्रसाद. ले जाते हैं वहाँ पे और मांगते हैं. ये जाते हैं तो यज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं. ये देखते भी नहीं उनकी तरफ, बच्चों की तरफ. बच्चे बोलते हैं अरे कृष्ण बलराम आए, उनको they want some food, they are hungry. These brahmanas they think we are doing yajna, we will not get disturbed by these small children. Why they are disturbing our yajna? They just don't pay any attention only. वो अपना काम करते, यज्ञ करते रहते हैं. ये बच्चे वापस आते हैं, बोलते हैं कृष्णा वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ. तो कृष्ण बोलते काम करो, वापस जाओ, go to their wives. उनकी पत्नी है ना, they are my pure devotees. You ask them and they will give you prasadam. जाते हैं, जितने भी उनके माता जी थे, बोलते वी वांट फूड. कृष्ण बलराम यहाँ पे आए, कृष्ण बलराम आए हैं. दे इमीडिएटली जो भी वहाँ भोगा रखा है यज्ञ कुंड में ऑफर करने के लिए, सब कुछ टोकरी भर भर के लेके जाते. उनके पति देव बोलते हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम, ये यहाँ पे यज्ञ में ऑफर करने के लिए रखा है, पूरा यज्ञ बर्बाद कर रहे हो, ये गलत है, गलत है. पत्नी बोलती ये सही है, लेके जाते हैं पूरा, है ना. इस स्टोरी का एसेंस क्या है? ये जो यज्ञ करने बैठे, किसके लिए यज्ञ करने बैठे वो लोग? जब भगवान मांगने के लिए आते हैं, ये लोग बोलते हैं कि क्यों देने का, हम यज्ञ कर रहे हैं अभी. सॉरी, हाँ, तो मूर्ख है ना वो. When the supreme person, यज्ञ पुरुष साक्षात is coming and asking food, you are thinking I am reject. See, that's why the punya, the pious activities, they are also binding sometimes. You know, पुण्य भी आपको जगत में इंटेग्रल करके रखता है, because it just keeps you in the profit loss calculation. इतना करूँगा ये मिलेगा, ये करूँगा ये मिलेगा. Go beyond that. Do not just calculate. ये करने से मिलेगा. कोई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में इतना दान दूंगा तो इतना मिलेगा. तिरुपति बालाजी जाते हैं, 50 रुपये ऑफर करेंगे, 50 लाख चाहिए. देखो प्रोपोर्शन में नहीं होता है. So if you go to the God with this calculation, then you are really still in the material world. You are still calculating profit loss, and your consciousness is not becoming divine. You go to God so that you become godly, isn't it? तो ऐसा यहाँ पे प्रॉपर कहते हैं. प्रभु जी आपने स्टोरी सुनी, रियलिस्टिक सिनेरियो में वो बेचारे ब्राह्मणों को भी कैसे मालूम पड़ेगा कि असली में कृष्ण है? यही तो प्रॉब्लम है ना. अब आप बोलिए, आप बताइए मुझे कि उन यज्ञ पत्नी को कैसे मालूम पड़ा कि ये भगवान है करके, कृष्ण बलराम. बिकॉज ये जो यज्ञ पत्नियां थी ना, ये रेगुलरली मथुरा में आने वाले जो फ्रूट सेलर रहते थे ना, दे वुड नरेट कृष्णा स्टोरीज इन वृंदावन. अरे कृष्णा ये ऐसे हैं वैसे हैं, कृष्ण भगवान अवतरित हुए, उनकी कथाएं बताते थे. एंड दीज यज्ञ पत्नी, दे आर ऑर्डिनरी हाउसहोल्ड लेडीज, दे वुड हियर, ओह कृष्णा गॉड ही हैज इनकार्नेटेड ऑन दिस अर्थ. और ये जो यज्ञ ब्राह्मण थे, ये क्या करते थे? वेद, हम वेदवादी हैं, हमें वेद पता है, हम त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, ये है वो है. लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड थ्रू स्टडी ऑफ वेदास, बट यू कैन अंडरस्टैंड गॉड थ्रू हिज प्योर डिवोटीज. आप अगर वेद टटोल के निकालोगे, पता कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इतना वास्ट
उसके डिवीजन सब डिवीजन वेदों के, कि जब तक भगवान तक पहुंचोगे आप वेदों के थ्रू, तब तक जीवन समाप्त हो गया होगा। कितने पोर्शन है वेदों में, आप बताओ आप मुझे। कहीं पे दुर्गा की पूजा कही है, यहाँ पे शिव की पूजा कही गई है, यहाँ पे कहीं पे विष्णु की भी पूजा कही गई है, लेकिन वहां पे विष्णु को सुप्रीम नहीं बताया गया है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज अ पर्टिकुलर वेद बताया गया है सुप्रीम, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। और भगवान ने ये पासवर्ड लगा के रखा है वेदों के ऊपर। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड इवन इफ यू रीड भगवद गीता, स्टिल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो लोग गीता पढ़ने के बाद में क्या बोलते हैं? कृष्णा वाज वन सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, very powerful mighty prince, and he was doing some magic also. सुदर्शन चक्र निकाला और छुपा दिया, मैजिक बोलते हैं उसको। क्योंकि कृष्ण को आप ऐसे, भगवान ने ये जानबूझ के पासवर्ड लगा कर रखा है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेस गॉड ऑन योर ओन, यू हैव टू गो थ्रू गुरु, यू हैव टू गो थ्रू हिज डिवोटीज, एंड कृष्णा वांट्स दैट यू सबमिट टू माय डिवोटीज, देन ओनली यू कैन एक्सेस इट, अदरवाइज नहीं एक्सेस कर सकते। What about some people डायरेक्टली वर्शिपिंग गॉड। नहीं, मतलब जिन्होंने they've never read the Gita, but बचपन से वो उन्होंने कृष्णा को ही भगवान माना है या बेस्ट फ्रेंड या जो भी। हाँ, तो वो उनके such kind of people. it doesn't happen haphazardly or suddenly. They have their background from the past life, or they have background that even in this life also they have done some devotional activities. उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। No, but Unknown- बचपन से जिसने किया वो क्या डिवोशन, मतलब वो क्या एक्टिविटी? अरे बाबा, आपने किया तो क्या आपके घर में एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया है ना किसी ने। You may not know, but उन्होंने किया है ना, उनका क्रेडिट आपको मिल रहा है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप डिवोटी बने पहले। आपके घर में अगर कोई डिवोटी है दूसरा, ऑटोमेटिकली आप एक ऐसे जंक्शन पे आ जाएंगे, यू विल मीट सम डिवोटीज एंड यू विल कैच इट इमीडिएटली, वाओ दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड आई वांट टू गेट दैट। कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन बन जाता है। इवन इफ यू आर वर्शिपिंग दुर्गा, यू आर वर्शिपिंग दुर्गा, राइट? Durga is what? Durga is Parvati. She is pure devotee of Lord Ram, isn't it? शिव पार्वती क्या करते रहते हैं जब माला लेकर? राम नाम जपते हैं। लेकिन कभी लोग पूछते नहीं कि क्या जपते हो आप? वो खाली जाते हैं, सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव की पूजा करो, पति चाहिए सोमवार को उपवास करो, एक टाइम ही भोजन लो के लिए। They do not ask only कि किस नाम का जाप कर रहे हैं आप बैठ के। ब्रह्मा जी also chanting, right? उनके हाथ में माला रहता है। Shivji also chanting. All these big administrators of the universe, they are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. But पूछते नहीं हम लोग। That's the problem. इसलिए ये बताने के लिए प्रभुपाद and all these acharyas parampara is required. So it is like that. And then in the 51st verse he says, we still have 10-15 minutes. We'll complete this, then फिर आगे से नया सेक्शन चालू होगा। 53 से 51, 52 will complete. 53, yeah, 53 के 54 से नया चालू होगा। We'll complete this in 10-15 minutes. Then he says, इधर गया? या 51 कर्मजम बुद्धि युक्तम हि फलं त्यक्ता मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् च। बढ़िया। By thus engaging in devotional service of the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Yes. So two things happen here. First thing is जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के संसार चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। First thing that happens. Second thing, पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो आप बोलेंगे अभी मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा, यहाँ से मुक्त होने के बाद क्या करूंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? Where I will go? You will go to? First time in the Gita, Krishna is telling about his kingdom. He will come to my place. That is back to Godhead. Right? And that place is beyond any misery. There are no miseries like birth, death, disease or old age. You don't die there. You don't get old. Right? It is something like that. So it is like that. And of course, Prabhupada ने purport में एक सुंदर श्लोक दिया है। समाश्रितये पाद, प्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेषाम. The last line है ना, Yes. पदम पदम यत विपदाम नतेषाम, मतलब that every step there is a danger. एक कदम आगे जहाँ डालोगे मालूम नहीं क्या होगा. और राधा महाराज तो कहते हैं 2 कदम के बीच में भी डेंजर है. कदम डालने के बीच में भी डेंजर है. नॉट दैट कदम डालने के बाद डेंजर आएगा. जनरली जहाँ पर लैंड माइन बिछाया हुआ है, आप फूक फूक के कदम रखेंगे ना, यहाँ पे हरे कृष्णा नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, यहाँ पे कुछ नहीं. लाइफ इज नॉट जस्ट लाइक दैट. वो रखने के पहले दूसरा कदम, मतलब जो कदम उठाया रखने के लिए, वो रख भी पाओगे कि नहीं मालूम नहीं. उसी टाइम उधर से एक ग्रेनेड आ गया, मिसाइल आ गया, टक, तो फिनिश्ड. लाइफ इज लाइक दैट, इज इट? बट यहाँ पे कहते हैं एनीबडी हु इज वर्शिपिंग कृष्णा और गॉड, उसके लिए ये इतना बड़ा भव सागर, जो एकदम बड़ा भयंकर समंदर है ना, सागर, संसार सागर, ये क्या बन जाता है. कभी आपने देखा है क्या गांव में काफ का जो हुक प्रिंट रहता है, कितना रहता है उसका काफ का खड्डा, कितना खड्डा होगा. अगर गाय का बछड़े का, गाय भी नहीं है बछड़ा, गाय का बछड़ा अगर सब पैर डालेगा एक जगह कीचड़ में, वहाँ पे इतना सा गड्ढा रहता है, उसमें कितना पानी होता है, उसमें कोई डूब के मरेगा. तो यहाँ पे भागवतम का श्लोक में कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा भव सागर इतना सा हो जाता है when you become devotee of the Lord, and you can easily cross that, easily transcend that. So it is like that. And then Prabhupada in the second paragraph says, owing to the ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent person try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. And लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. कितना एडजस्ट करोगे, यहाँ से निकलने का कोशिश करो. Prabhupada used to say, this place is not a place for gentlemen. Just like you go to the toilet. भले अपने टॉयलेट के अंदर कुछ फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ये ना कुछ जो लगाते हैं ना, कितना भी लगा के रखो, कितना देर रहोगे टॉयलेट के अंदर, निकलना पड़ेगा ना बाहर. तो उसके अंदर सो जाओगे, उधर ही बैठ के है ना बुक रीडिंग करोगे, नहीं ना. You have to get out, right? This world is like a toilet. Even though we may fight for dharma and develop everything, but ultimately this is not a place for us. We are doing this so that we can help people to get out of this. है ना, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ, हम लोग ये सब क्यों करते हैं इतना सब, ये सब, है ना. बोले मेरा फेसबुक पेज से भरा हुआ है वॉर से. We are doing this so that people can understand that this is done for your, ultimate benefit. Do not think that tomorrow, राणा प्रताप इन्होंने इतना बलिदान क्यों दिया, ताकि लोग कल धर्म का पालन करें. बराबर है. That's what they say ना, अगर हमारे forefather ने एक samurai related हो गए, तो कहते हैं अगर why your exam paper is in Hindi, मतलब अगर उन्होंने अगर fight नहीं किया होता तो ये exam का paper दो में होता. हाँ. Why I am Hindu still? Because my forefather never gave up. If they gave up, तो फिर मैं आज हिंदू नहीं होता. And why you are Hindu still? Why you should remain Hindu? That we have to clarify. Why you should remain Hindu? If you are sure, go back to order. No. You should remain Hindu because you want to what? Hare Krishna. See, I want to say, आपको कोई भी चीज अच्छा लगे तभी आप करेंगे ना. I am not saying by forcefully chant Hare Krishna or forcefully follow Hinduism. आपको अच्छा लग रहा है हिंदुइज्म में, इसलिए फॉलो कर रहे हैं ना. And why you like? Because this is the religion that gives me ultimate satisfaction. There is a peace. Ultimately, we want peace and happiness, isn't it? तो आप हिंदू इसलिए हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है. और क्यों अच्छा लग रहा है? और उन हिंदुओं को कुछ ऐसे हिंदुओं को अच्छा नहीं लग रहा है. उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? Because they really don't want to worship the Lord. उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सारा पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ और एंजॉय करो यहाँ पे. जबकि एक हिंदू का उद्देश्य क्या है? हिंदू मतलब क्या होता है ये हमको मालूम नहीं है. आज हम हिंदू क्यों हैं
हिंदू मतलब एक्चुअली आइडियली सिंधु नदी के पार उनको हिंदू बोला जाता है। इससे एक्चुअली वे सनातनी, एक्चुअली आपको सनातनी कहा जाता है, नॉट हिंदू। बट अभी वो उन लोगों ने कहते समय बोल दिया कि जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं वो अपभ्रम सिंधु हिंदू हो गया। दैट इज द रूट एक्चुअली। Actually we are Sanatan. Sanatan means what? One who never dies. And who doesn't never dies? Body और आत्मा। आत्मा। See, हमारे शब्दों में ही इतना सारा आत्मा ज्ञान भरा हुआ है। सनातन मतलब ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती। क्या खत्म नहीं होती? ये बॉडी तो खत्म होगा ना? ये शून्य में खत्म नहीं होगी। सोल नहीं खत्म होगा ना? सो देन इंक्वायरी करना पड़ेगा। ये सोल क्या है भाई? तो फिर शास्त्र बताएंगे सोल मतलब क्या होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। फाइनली बोलेंगे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव शरणं व्रज। अल्टीमेटली गीता के एंड में भगवान बोलेंगे आप आत्मा हो तो आपका परम कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। एंड आई एम दैट परमात्मा, सरेंडर टू मी जस्ट लाइक जोई माता जी सरेंडर्ड। कंप्लीट सरेंडर। हरे कृष्ण। आपने फिर हरे कृष्णा बोला, she got up and she's looking at that is the whole concept. मैंने 2 बार वही नोटिस किया, when you say हरे कृष्णा she gets up. She is safe. What? Yes. She anywhere she's next to me na, so she's content कि she is safe. Yes. It's just like a mother. You know, if the child is next to mother, Safe. the child is feeling safe. Similarly, if we are close to God, Yes. we will feel secure, you know, and satisfied and content. Right example. So इस तरह से, and then ये इतना बताने के बाद फिर कहते हैं 52 में यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। Yeah, read. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you will become indifferent to all that is being heard and all that is to be heard. Yes. अभी आपने क्या है भक्ति में आने के पहले बहुत कुछ सुना है ना। Yes. आपके कॉलेज के दोस्तों ने सुनाया होगा, आपके ऑफिस के दोस्तों ने सुनाया होगा, टीवी ने सुनाया होगा, न्यूज़पेपर ने सुनाया होगा। ये दुनिया एंजॉय करने के लिए बना है, ये दुनिया में कितना आनंद है, देखो देखो कितना आनंद है। अभी वॉर क्या है? आनंद है क्या? नहीं है ना। बट दैट इज अगली रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, इजंट इट? इसलिए एक्चुअली वो जो मैं बता रहा था पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, लोग कहते हैं कि अरे ये टेररिस्ट अटैक में लोग मर गए, दे आर इनोसेंट पीपल। कुछ लोग बीमारी से मर गए, कुछ लोग इससे मर गए। द क्वेश्चन इज नॉट दैट दे डाइड लाइक दिस और लाइक दैट, द क्वेश्चन इज व्हाई दे डाइड। आखिर मृत्यु है ही क्यों संसार में? प्रश्न पूछना है तो ऐसे पूछो, ये मत पूछो कि ये इस तरह से मर गया। प्रश्न पूछो कि मर ही क्यों गया, मरते ही क्यों हैं हम लोग? समझे कि नहीं? Unless we ask like this, we are still in the dense forest of श्रोतस्य मतलब क्या? जो सुना है अभी तक आपने कि ये तुमको एंजॉयमेंट देगा, ये एंजॉयमेंट देगा, ये एंजॉयमेंट देगा, सब चीज ट्राई करके देख लिया। पता चला लास्ट में कि देता तो है लेकिन बाद में बहुत परेशानी है इससे। और अल्टीमेटली देयर इज नो प्लेजर ओनली। इफ यू सी एट द एंड of your life, you will see that actually there is no pleasure. The real pleasure was in serving the Lord. जितना हम सेल्फलेस रह के सेवा करते, देखिए आप लोग भी सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, the kind of the inner fulfillment you get, इतना छोटा सा भी अगर सेल्फलेसली सेवा करेंगे ना, the kind of satisfaction and peace you get, you cannot get that peace or satisfaction even by attaining the, you know, whatever the highest achievement, you know, you had, you know, all anytime dreamed. समझे कि नहीं? भक्ति का ये इतना ये मतलब सेल्फलेस सर्विस का क्वालिटी। So that's why we have to understand that यहाँ पे जो कृष्ण कह रहे हैं श्रोतस्य मतलब क्या? जो भी सुना है, राइट? और श्रुतस्य मतलब क्या? जो सुनने जा रहे हो। अभी क्या न्यूज़पेपर बंद नहीं होगा, इंस्टाग्राम बनने वाले वाला है, हाँ? आजकल लोग बहुत घूम रहे फोटो इंस्टाग्राम में, वो इसका तो क्या क्या नाम है वो लड़की का, वो कुरैशी लड़की, सोफिया कुरैशी, उसका फोटो और एक सोफिया करके कोई तो टिकटॉक वाली है, आपने नहीं देखा? तो वो क्या कंपेयर से नहीं अच्छा हो रहा है, दे आर लिविंग लाइक दिस,
ये देखो ये कैसे हम किसको आज स्टार बना के रखे हैं? Who are our ideals? फिल्म स्टार। उसमें से एक भी नहीं बोल रहा है अभी कि धर्म के लिए लड़ाई करनी चाहिए, और क्योंकि उनका फैन बेस उधर है। Means what? They are always thinking about उनको पड़ी नहीं है। बच्चन is absolutely quiet. उसका criticism आया कि उसने एक भी ये भी नहीं बोला sorry for the victims who died in Paris. सोचो Absolutely quiet. उनके सोशल मीडिया फॉलोअर कितने मालूम है क्या? No, but he posts something In every day. millions and billions सोशल मीडिया फॉलोअर्स रहते हैं। If they say something good thing, कितना पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आ सकता है। That shows how scared they are. I mean, Not- they're not brave people. They are scared also, They're not and brave. scared means what? They are scared for themselves, Yeah, but- scared for their own livelihood. So people like us are stupid जो उन्हें हीरो मानते हैं. Yes, तो मैं Heroes वही are बोल the रहा हूँ। soldiers who are dying on the war front. तो वो फोटो घूम रहा है, इस तरफ एक लड़की का फोटो और इधर एक लड़की, बोले कि देखो आपका कौन है हीरो, चूज करो। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में he called two people, two lady. One is a Hindu, घूंघट पहना था, she was from Rajasthan, and one is a Muslim. तो उसको आपको घुटन नहीं होगी घूंघट डाल के उसको ऐसे करके, और वो मुस्लिम को बोलता वाह कितना अच्छा है, कितनी तहजीब है आपने, मतलब like he was trying to always want to be more on that side. सेक्युलर। हाँ, और बाद में उसके बाद में बहुत लोगों So ने why are Hindus only behaving that oh we are secular? Muslims never do that. इसलिए तो मार खा रहा है ना। हाँ See, इसका सबका रूट क्या है? We have gone far away from our scriptures. आज अगर आप भगवद गीता पढ़े ठीक से, कम से कम एक कर्मकांडी क्यों ना हो, चलो एक कर्मकांड लेवल पे भी हिंदू बने रहोगे, but we have gone so far away in the name of secularism and in the name of just being good. इसलिए ना एक जगह कहा जाता है, अगर आपको कुछ ह्यूमन लाइफ को स्पिरिचुअल फैसिलिटीज दी गई हैं स्पिरिचुअल लाइफ को रिवाइव करने के लिए, इफ यू डोंट यूटिलाइज दैट एंड ट्राई टू एंजॉय मटेरियली, यू सफर मोर। यू नो, आजकल देखो एनिमल्स आर एक्चुअली फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। किसी भी कुत्ते बिल्ली को कभी डिप्रेशन नहीं आता है, आपको आता है? Have you ever heard किसी बिल्ली ने बोला आज मेरा मन नहीं कर रहा because I am depressed, I don't want to drink this milk, my mind is very disturbed today? मैं किसी कुत्ते को सोचा है आज मेरा ब्रेकअप हो गया, I want to suicide? सुना है कभी? इंसान कर रहा है ये चीजें, मतलब इंसान कितना नीचे उतर गया है पशुओं से भी। ये सब क्यों? क्योंकि आपको जितना ज्यादा दिया गया है उतना ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ता है, and if you don't utilize that, you suffer even more, you are punished very badly, right? So that's why we have to utilize our human life. So यहाँ पे कह रहे हैं when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion. ये delusion क्या है? I am this body, I want to enjoy this world. You know, he is my enemy, he is my friend. Right now you may say अभी तो बोल रहे हैं अभी enemy friend, but this enemy friend is going on for what? For establishment of dharma, not for my own sense gratification. Yes. तो एक डाउट था कि पता जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको होता है डिप्रेशन, तो इसका एक मैंने पढ़ा था कि जो रास्ते के कुत्ते होते हैं उनको नहीं होता है, जब एनिमल्स हमारे साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो भी बिगड़ जाते हैं। That depression is because of you. Your vibrations they are getting. You are depressed, they also become depressed. मतलब क्या है? Ordinarily, actually देखा जाए ना from Vedic point of view, dogs are never kept inside the home. Ideally, do you know that? They are always kept outside the home. Now, I don't mean to say कि आप लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आजकल जमाना अलग है, you know, your needs are different and your understanding is different. But actually, from Vedic point of view, they are not, you know, ऐसा नहीं कि उनको neglect किया जाता है. They are taken care. They are taken very nice care. क्योंकि वैदिक सभ्यता का ही है कि you know, किसी के ऊपर भी आपको क्या करना है? दया दिखानी है। ये कॉन्सेप्ट है वैदिक सभ्यता में। तो फिर इंसान हो, पशु हो, किसी के लिए भी। बट हम लोग क्या है, चलो अभी ठीक है कैसे भी हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अभी हिमालय में जाकर तपस्या कीजिए, यू कांट डू दैट। भक्ति करने के लिए घर में रहो तो करो, जो करना है करो, यू नो, साथ में किसको रखना है नहीं रखना है, ये खाना है नहीं, जो करना है करो, चैंटिंग करो, यू नो, इससे उनका भी उद्धार हो जाएगा। जो ऑर्डिनरी बाहर रह के नहीं होने वाला था घर में आके हो जाएगा, यू नो, उसका भी अपना कर्मा रहेगा ना कुछ पिछले लाइफ का, दैट इज गेटिंग बेनिफिटेड।
सो लाइक इस तरह से ये यहाँ पे है. एंड देन इतना पूरा करने के बाद इन द वर्स नंबर 52, देन इन द 53 विल जस्ट रिसाइड द वर्स. वो कंक्लूड करते हैं वहाँ पे. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्ति निश्चला समाधवचला बुद्धिस्तथा योग्यम अवाप्स्यसि. या somebody read the translation. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Yes. So finally Krishna concluded इस तरह से. It began with the verse number actually 31. आत्मा का वर्णन करने के बाद इस तरह से इतना वर्णन किया, कहा कि देखो आत्मा का पहला एप्लीकेशन क्या है, आत्मा कैन गो टू स्वर्ग. बट आगे 38 से कहना चालू किया क्यों स्वर्ग जाने का भाई. स्वर्ग भी क्या है, लिमिटेड है. वहां भी इंडिया पाकिस्तान और होता है. वहां भी देयर आर आल्सो डीमंस एंड देवतास. दैट्स आल्सो नॉट अ सेफ प्लेस. बेटर यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. फिर इसके लिए 39 से लेकर यहाँ तक इतना विस्तार से बताया कि इस जगत में अगर आप आसक्त हो जाओ तो क्या प्रॉब्लम है. केवल अपने फल को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड के स्तर पर भोगने के लिए संसार को रहोगे तो क्या प्रॉब्लम है. बेटर यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो इसमें बहुत सारे नए नए आपको टर्म्स सुनने को मिले हैं. कर्मयोग, ज्ञानी, बुद्धि योगा एंड मुक्ति संसार से, ये सब सुना आपने. नाउ अर्जुन, you assume that Arjun is a very new student, suddenly जिसने ये सुना तो समझ में आ रहा, लेकिन but he is quite confused कि अरे आप बोल रहे योगी होना चाहिए, उसको satisfied होना चाहिए, he should not be disturbed and all that, and at the same time you are telling me fight war. If I am fighting war, how can I not be disturbed? एक गोली आएगा मुझे लगेगा मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं किसी को मार दूंगा, उससे डिस्टर्बेंस नहीं आएगा. बहुत कुछ हो सकता है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं आप. तो नाउ अर्जुन विल आस्क क्वेश्चन इन द 54 वर्स. यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज योगी. योगी के बारे में बोल रहे हैं ना. तो नाउ वी विल आस्क ये योगी लड़ाई करता है क्या. क्योंकि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अर्जुनस माइंड. अभी अर्जुन के सामने इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, ये वॉर फाइट करना है कि नहीं करना है. एंड कृष्ण इज टेलिंग समथिंग डिफरेंट. ही इज थिंकिंग लाइक दैट. कृष्ण बोल रहे योगी बनो, तपस्वी बनो, समाधानी बनो, संतुष्ट रहो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है इसको सहन करो. अरे तो मतलब ये व्यक्ति लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ मुझे. आप जो बनने के लिए मुझे कह रहे हैं ये व्यक्ति कौन है. Now tell me about who is this person, what are his characteristics, what he is supposed to do, because he is not able to understand, digest only like you. आप ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं, भक्त बनो चैंटिंग करो, भक्त बनो चैंटिंग करो, भक्त बनो चैंटिंग करो. तो ये व्यक्ति ऑफिस जाएगा कि नहीं जाएगा. ये घर में घर गृहस्थी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बच्चों को जन्म देगा कि नहीं देगा. Is the practical question? Yes. Same question for Arjuna. Yes. You are Arjun. Yes. And Arjun is playing the role of Ashish Gupta. So Arjun will ask this question in the verse number 54 कि ये व्यक्ति है कौन भैया. इतना बोलते जा रहे हो, ये कौन है, ये लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ मुझे, क्योंकि मुझे तो लड़ाई करना है ना अभी. So that answer will come from verse number 54. And there is another beautiful section 54 to 72 where Krishna will describe who is this person actually, what he is supposed to do. ये तो क्या करना है वो तो पता है, but why he is doing that and how he should do वो भी बताया है, but still he will clarify it more, elaborate करेंगे. और तो हम देखेंगे उसको अगले हफ्ते. हरे कृष्णा. Okay, so any questions? No questions. Last time when we are eating food, it will come. Sorry? फिर मन में आएगा तो खाते वक्त शायद आप पूछेंगे आपको. Yeah, sure. And by the way, today is Narasimha Chaturdashi. Today is birthday of Lord Narasimhadev. He's the form of. Yeah. half woman, half Yes, lion. he came from Prahlad Maharaj to deliver from Hiranyakashipu demon. आज का अच्छा दिन है, बोलता आज ही कुछ मिसाइल अटैक कर दो चार. No man or no, demon लोग मार दो. no man or no God can kill me. So you can Yes. have. So we will chant his prayer also. We will do kirtan.
Yes, 5 yes. minutes, then we will chant Narasimha prayer. Narasimha. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
दूसरे के लिए और जो हमारे सैनिक लोग हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि धर्म की लड़ाई जीती जाए और सब लोग सेफली वापस आए। हरे कृष्णा। बिकॉज हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज वेरी पावरफुल, स्पेशली व्हेन वी ऑफर प्रेयर टू लॉर्ड, राइट? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड नरसिम्हदेव। एक्चुअली नरसिम्हदेव ऐसे ही है, इट्स लाइक अ वॉरियर फॉर्म, like he's going to kill the enemies. Hare Krishna. It's like getting up from the battlefield.